This class. Today we will discuss here product of two vectors. Clear? Product of two vectors, two types here. Product are the two types here. First type here dot product. Second is the cross product. The dot product is called the scalar product, and cross product is called the vector product. Clear? The first thing here, there are two types here. First, scalar product, scalar product or dot product. Second type here, vector product. इसको हम कहते हैं क्रॉस product. So this is the next exercise. Vector product is the next exercise 10.4. Today we will discuss here only scalar product. Clear? What is the scalar product? Suppose first point we are scalar product. Scalar product, suppose two vector here. Vector A and vector B. Clear? So the scalar product is dot product vector A dot scalar product means dot product. Yeah, DOT. So then this will be magnitude of vector A, this will be magnitude of vector B and cos theta. Clear not? Or theta is what is theta? Where theta is angle between two non-zero vector, between vector A and vector B, vector A and vector B, direct. Here, so vector A and vector B are two non-zero vectors. Now vector A B or vector A will be not zero, then angle will be formed now. अब दोनों की वैल्यू जीरो होगी तो एंगल इज नॉट फाउंड. So then theta is the angle between the vector A and vector B. Now what is the value of the theta here? Theta always lie here greater than, so 0 greater than equal to theta less than equal to pi in 180 degree. Most clear? जब प्रोजेक्शन का पढ़ेंगे उसमें तो मोर देन हो जाता है, पर इसमें मोस्टली वेक्टर आपके इसके बीच में आपके एंगल आपके फाइंड हो जाएंगे. क्लियर? अब इसकी जो कंडीशंस हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस है इसके अंदर, वो आपको डिस्कस करेंगे. क्लियर? इसकी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं. फर्स्ट, सपोज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री. क्या है? सपोज क्या है? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री. सपोज ये एंगल आपके पास, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपके पास? व्हाट वैल्यू ऑफ द cos 90? व्हाट वैल्यू ऑफ द cos 90 है ना, cos 90 cos थीटा. व्हाट वैल्यू ऑफ द cos 90? 0. तो यू कैन राइट हियर देन वेक्टर ए वेक्टर बी इक्वल टू 0 डिग्री. इसका मींस वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी. डन इट? ये भी कह सकते हैं आप, ये डॉट प्रोडक्ट है. सेकंड कंडीशन, if theta equal to 0 degree, then the vector A dot vector B equal to magnitude of vector A magnitude of vector B, because cos is equal to what? In this case vector A parallel to vector B. ये कह सकते हैं आप, दोनों वेक्टर क्या होंगे? पैरेलल. थर्ड केस, what is the third case here? Yeah. Next case here, if theta equal to pi, if theta equal to pi degree in 180 degree, then vector A dot vector B is equal to minus magnitude of vector A and magnitude of vector B. Right now, third case here, if theta equal to pi degree, then value is the same but negative value is come here. Done. Next, if अब when you multiply the vectors,
here, when you multiply their vector, suppose vector A here your I plus j plus k, clear? This is na A1 A2 and vector B here, suppose here minus I plus 2j plus k, any vector here, any vector. So what is the value of I when you multiply here? Then I dot I equal to 1 and j dot j equal to 1 and k dot k equal to 1. Clear not? ठीक, जब भी हम टू वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो डॉट प्रोडक्ट का रूल्स टेक्निकल अलग हैं और वेक्टर प्रोडक्ट के टेक्निक्स अलग हैं। तो यहाँ ये सारी ऑब्जर्वेशन बता रही है कि आप डॉट प्रोडक्ट की है, क्लियर? तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा, जब आई टू आई यानी जब लाइक फॉर्म से हम मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक कंपोनेंट से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। अगर हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में कर दें आई टू जे इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, या जे टू के कितना हो जाएगा 0 एंड के डॉट आई कितना हो जाएगा 0। अपोजिट कर दिया, आई जे के साथ कर दिया, आई जे के साथ कर दिया, या जे आई के साथ कर दिया तो क्या रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका 0। जब लाइक मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा 1। इसका मीन तो आई की मल्टीप्लाई हम आई से करेंगे, जे की मल्टीप्लाई जे से करेंगे और के की मल्टीप्लाई के से करेंगे। आई की मल्टीप्लाई जे और के से करने की रिक्वायरमेंट नहीं, रिजल्ट क्या आना है 0, तो डोंट मल्टीप्लाई है, क्लियर? सेम थिंग हियर, व्हेन यू मल्टीप्लाई जे टू जे रिजल्ट विल बिकम पॉजिटिव, पर व्हेन यू मल्टीप्लाई आई एंड के रिजल्ट विल बिकम 0, तो डोंट मल्टीप्लाई इट, क्लियर? एग्जांपल आपको दे कि आप आई के साथ जे के साथ और के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, रेस्ट विल बी नॉट मल्टीप्लाई, डन इट, क्लियर? नेक्स्ट, दिस इज नोटेड, टेक नोट ऑफ इट। नेक्स्ट थिंग हियर, सपोज यार एनी एंगल्स, दिस इज पर्टिकुलर एंगल्स गिवन हियर कि 90 है, 0 है, 180 है या एनी अदर एंगल, बट सपोज अदर एंगल्स हो, जरूरत हो कि 90 होगा, 30 हो गया, 60 हो गया, 120 हो गया, देन how to solve it? So then you will using the SPR cos theta equal vector A dot vector B upon magnitude of vector A into magnitude of vector B. Clear not? According this way you will solve. Clear? अगर हमें कोई भी एंगल दे रखा है, हम उसको मेन एंड में आपको वही रहेगी जो हमने निकाली थी, क्या वेक्टर ए उसी से निकालना, इसकी मतलब यहाँ पर वही है फर्स्ट आइडेंटिटी आपको नहीं, क्लियर? तो अगर हम इसको ओनली आपको एंगल निकालना है या अदर एंगल्स आपको गिवन हैं तो हम इस कंडीशन में पुट करके उसको फाइंड कर देंगे, क्लियर? डन इट। सेकंड थिंग्स, कुछ प्रॉपर्टी है इसमें, कुछ प्रॉपर्टी है क्या कि जैसे हमारे पास क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये हमने 6, 7 में पढ़ी है ना, तो वेक्टर में इम्प्लीमेंट हो जाती है। ऐसे नहीं कि आपके कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी हर जगह लग जाती है। अभी हम इससे पहले सेट थ्योरी में पढ़ रहे थे लास्ट 11th क्लास में, या रिलेशन फंक्शन में हम पढ़ रहे थे, वहाँ पे आपके सेट थ्योरी कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती है, क्लियर? पर वेक्टर में अप्लाई हो जाती है, क्लियर? तो अगर अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, क्लियर? तो प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या आपके पास कि सपोज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इनटू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्लियर? सपोज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, दिस इज कॉल्ड द कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी, अगर दिस इज कॉल्ड द वेक्टर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बिकॉज योर डॉट प्रोडक्ट बी प्लस सी, योर 3 वेक्टर्स, ए वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाइंग ओनली 3 इंटीजर्स या 3 नंबर्स या 3 वेक्टर्स या 3 एनीथिंग्स, क्लियर? देन इज द आइडिया कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, डन इट, क्लियर? नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी, व्हाट इज नेक्स्ट थर्ड? Suppose you are multiply any scalar number, any vector you are multiplying here
then result will become the same. Means if lambda vector A dot vector B, what result come here? This will become, suppose you are write lambda vector A dot vector B. Otherwise you can write here vector A lambda vector B. This result will be not change. Clear? Result will be not change. Here you can write outside here, inside this is not better. You can use this property also to vary multiply any. What is the lambda here? Lambda is any scalar number. Those are not direction, means 2, 3, 4, 5, 7, any constant number, any real numbers. The real number are called the scalar number. Clear? Those are not having the directions and any real numbers. Done? तो लैम्बडा क्या है? अगर हम किसी भी लैम्बडा से एक के साथ मल्टीप्लाई करें, वेक्टर के साथ करें, वेक्टर के साथ करें, तो रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं आएगी. रिजल्ट विल कम द सेम. डन? क्लियर? Projection of vector A on vector B. Let's suppose vector A का vector B में what is the projections? Clear? तो suppose this is a line L. This one is the vector B. This is the A vector. This is the B vector. The name of this vector is the A. तो 90 डिग्री प्रोजेक्शन आ गया इसमें ये. दिस इज नेम ऑफ दिस वेक्टर B. ABC. Direction of this vector is clear. Or this vector direction of this. So what is the projection of the vector A on the vector B? So you will write your projection of vector A on vector B equal. You can write here vector A dot vector B upon magnitude of vector B. Any problem? Any problem here? So vector A dot vector B upon magnitude of vector B. Otherwise you can write in this form vector A dot unit vector of this vector B. ये भी लिख सकते हो इसको. यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होगा? वेक्टर B अपॉन magnitude vector B. और मैं इसकी अगर हम वेक्टर B का यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो क्या होगा? वेक्टर B अपॉन मैग्नीट्यूड वेक्टर B एक ही बात है. ये तो चेंजिंग है, एक ही चीज है ना. या यू कैन राइट दिस इन दिस फॉर्म. अदरवाइज ये भी लिख सकते हैं हम कि वेक्टर A डॉट बस इतनी बात नोट रखिए. इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B अपॉन इसको ब्रैकेट में. तो इसको इस फॉर्म में लिख लो. मेन आपका ये है कि इसको इस फॉर्म में लिख लो, इस फॉर्म में लिख लो, इसको बात है. क्लियर? इसकी वैल्यू कितनी होती है? ये तो होती है. इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, जो मैंने यहाँ पे अलग से लिखा था इसको इस फॉर्म में रखा है. क्लियर ना? एनी प्रॉब्लम? तो मेन आपका ये है. अगर सपोज यूनिट वेक्टर के फॉर्म में कोई क्वेश्चन दे रखा है कि आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो. क्लियर? उससे भी आपका क्या निकलेगा? प्रोजेक्शन फाइंड हो सकता है. डन इट? इसमें सपोज दिस इज द एंगल ऑफ दिस प्रोजेक्शन हमेशा क्या निकलता है? दिस इज द थीटा. एंटी डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा कैसा होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. थीटा क्या होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए. दिस इज द थीटा. अब इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन दे रखी है, कुछ कंडीशन दे रखी है. फर्स्ट कंडीशन यह सपोज थीटा इक्वल टू 0. अगर थीटा आपका 0 हो जाए, इस थीटा की वैल्यू 0 हो जाए तो प्रोजेक्शन ए बी कितना हो जाएगा? इट सेल्फ ऑफ ए बी हो जाएगा. Clear? What is the project? How much projection of vector A? AB itself of the AB. Clear? इसमें क्या इसमें लिखना है आपको if theta equal to 0 then projection of vector AB then projection of vector AB is itself vector AB. वही रहेगा. क्लियर? सेकंड कंडीशन इज सपोज अगर थीटा इक्वल टू आपका कितना हो जाए? 180 डिग्री हो जाए पाई. अगर थीटा कितना हो जाए आपका? अगर पाई हो जाए तो
then projection of vector AB is माइनस वेक्टर ए बी, इसका नेगेटिव हो जाएगा अपोजिट। क्लियर? इफ थर्ड कंडीशन, इफ थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 यानी 90 डिग्री हो जाए, है ना, पाई बाय 2 और एंड कर दो एंड 3 पाई बाय 2 हो जाए। पाई बाय 2 मतलब 90 और 3 पाई बाय 2 मतलब 270 डिग्री। क्लियर? ये हो गया ना प्रोजेक्शन, ये 90 डिग्री हो गया, ये 270 डिग्री हो गया ना। इसको 90 मानते हैं, कितने मानते हैं? 270, 220 करते हैं 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 आपका हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा? तो प्रोजेक्शन इज देन प्रोजेक्शन ऑफ द ए बी क्या हो जाएगा आपका? ओनली 0। देन द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी विल बी 0। डन इट? तो प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा? 0 आपका आ जाएगा। अगर ये 90 और 270 पे आता है, 90 का मतलब होता है पाई बाय 2 और इसका मतलब होता है 3 पाई बाय 2। अगर इस कंडीशन में आएगा प्रोजेक्शन आपका 0 माना जाएगा। अगर आपकी कंडीशन आती है 90 सॉरी 180 एंड 0 आती है तो आपका प्रोजेक्शन नेगेटिव एंड पॉजिटिव फॉर्म में आ जाएगा। डन? फिर उसको सेपरेट वे में सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्टली कैन पुट द आंसर। डन इट? डन? एनी प्रॉब्लम हियर? Yes, exercise 10.3 question number first. Find the angle between two vectors, vector A and vector B, with magnitude √3 and 2 respectively, having a vector A dot vector B equal to √6. First things you write the what things given here, or second things you will what things find here and then put the question mark. Done it? The first things here. Given here, what things given here? Vector A dot vector B here given √6, or what value of the vector A? What value of the vector A given here? √3. And what value of the vector B given here? 2. Or find the angle between. What find here you? Theta. You will find here theta. Clear? The first put here and here. So now, so cos theta equal vector A dot vector B upon magnitude of vector A. Clear? Magnitude of vector A into magnitude of vector B. And this is given the form of the magnitude form. This is the magnitude value. This is range of the magnitude. Yeah, magnitude form. So what putting the value here, you get the answer. What value of √6 here and magnitude of √3 into what value of 2. So this is the √3. No? This is the √3. Calculate here. The √3 into √2 upon √3 into 2. √3 will be cancelled. What is left here? Cos theta equal here √2 upon break down √2 into √2. This will be cancelled here 1 upon √2. And this is the area of cos theta here 45. Cos 45 5/4. This is the cos theta. What value of the theta here? This is your answer. Check this answer. Clear or not? You will put the value here. Then calculate and very simple questions. This is 1 mark questions. Done? Yes class, next question, question number 2 here. First thing, find the angle between two vectors. Here not given the magnitude value here. Here direct given here the vector A and vector B. Clear? So then you set up the vector A and vector B first. After that, you will find the magnitude of vector A and magnitude of vector B. Then dot product or putting the value in the identity and you get the answer. Angle. Done it? Yes. So now question number 2. So let what value of vector A equal I minus 2j plus 3k.
and vector b equal 3i minus 2j and plus a. इसको इस फॉर्म में लिखोगे तो आपको मल्टीप्लाई करना इजी रहेगी। सीधा 3 1 जा 3, 2 2 जा 4 है, 3 1 जा 3। क्लियर? इतने वेक्टर हैं इस फॉर्म में लिखो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई a डॉट b, वेक्टर a डॉट b कितना हो जाएगा? क्विक 3 1 जा 3 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 जा 4 एंड प्लस 3 1 जा 3। तो जो साइन के साथ साथ रहते हैं आपको मिस्टेक नहीं होगी। तो साइन आपको देखना है प्लस 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 माइनस माइनस प्लस 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 प्लस। क्लियर? और आई के साथ आई की मल्टीप्लाई, जे के साथ जे, के साथ के। 4 3 7 3 10। तो आपकी आंसर आ गया। आंसर नहीं है, हमें एंगल निकालना है ना। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए निकालेंगे तो ना मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना होगा? आपको बता रखा क्या? ऑप्शन ऑफ दी आई जे के व्हाट ऑप्शन ऑफ दी आई 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4 प्लस 3 के स्क्वायर 9। व्हाट विल बी 9 और 31 14। करेक्ट? सेकंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी ऑप्शन ऑफ आई जे के अगेन 3 स्क्वायर 9 प्लस 2 जा 4 प्लस 1 तो 9 को 31 into 14 डन। then you put the value what will you again cos theta find the angle between so write the vector a to vector b upon magnitude of vector a into magnitude of vector b. This means what will be of this 10 you write here 10 root 14 into 14 what's the solve 10 upon 14 root 14 root 14 14 और 2 5 are 10 और 2 7 are 14. Clear? Clear not? But then the cos theta equal 5 by 7. But this is not the any इसमें 5 by 7 की वैल्यू है टेबल में है नहीं। तो what you write here theta equal cos inverse 5 by 7. You will write in this form. अगर कोई वैल्यू आती है डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आ रही इस फॉर्म का इनवर्स फॉर्म डन इट चेक के साथ से करेक्ट अकॉर्डिंग दिस वे। अगर कोई डेफिनेट वैल्यू आ रही है फिक्स वैल्यू आ रही है पुट अदरवाइज यू राइट इनवर्स फॉर्म डन। यस क्वेश्चन नंबर 3 लुक हियर कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर a. First you assume the first vector is let the vector a on the second is the vector b. Clear not? Then first we find using the a dot b upon what is the identity of this vector a dot b upon magnitude of vector b. According to this you solve the question and then put the identity and get the answer. So now question number 3. Let vector a equal I minus a and vector b equal I plus a. Done it not? Clear? And you will find the projection of vector a on vector b. यानी वेक्टर का a वेक्टर का प्रोजेक्शन किसमें निकालना है? वेक्टर b पे। क्लियर? उल्टा करेंगे तो आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। बता दूंगा आइडेंटिटी कैसे करना है। इसमें क्या है? तो फर्स्ट वी फाइंड वेक्टर a डॉट वेक्टर b डॉट प्रोडक्ट I into I is 1 प्लस माइनस माइनस और आई कितना आएगा 1 here is 0 clear not so then you will get here और magnitude of vector a vector b कितना हो जाएगा root 1 plus 1 root 2 clear तो इसमें क्या आएगा projection of vector of vector a on vector b. What is your vector a dot vector b over magnitude of vector b? Done. और result of this क्या है 0 और 0 कौन कितना आपके पास root 2. What will you come here 0. Projection is 0. तो projection 0 कब आता है? जब वेक्टर परपेंडिकुलर 90 डिग्री हो या 270 डिग्री हो। चेक दिस आंसर। चेक दिस आंसर प्लीज। करेक्ट?
तो इसमें क्या है, वेक्टर इसका प्रोजेक्शन वेक्टर ए का, अगर हम उल्टा कर दें प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, इसका चेंज जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, जिसके प्रोजेक्शन निकालना है वो डिवाइड हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? हमने यहाँ पे क्या निकाला है, ए टू बी निकाला, नॉट बी टू ए निकाला, डन इट? क्लियर? एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन।